However, proponents of Greater Nepal argue that several territories, such as parts of Uttarakhand, Himachal Pradesh, Bihar, and West Bengal, should be integrated into Nepal. One of the primary concerns is the security implications that Greater Nepal may pose to India. With the addition of these territories, Nepal would share borders with China, Bhutan. ग्रेटर नेपाल के लिए अहम खबर आ रही है इस टाइम पे बर्तानिया से यानी ब्रिटिश से काफी इंपॉर्टेंट न्यूज निकल के आ रही है। ब्रिटेन की न्यूज मीडिया की तरफ से काफी इंपॉर्टेंट न्यूज निकल के आ रही है ग्रेटर नेपाल के बारे में। तो आज हम इसी के ऊपर रिएक्शन देंगे और आपके साथ शेयर करेंगे कि ब्रिटेन नेपाल की कैसे मदद करने वाला है ग्रेटर नेपाल के मामले में। उनकी एक ऑफिशियल न्यूज निकल के आई है तो उसको देखेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि नेपाल के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि अगर ब्रिटेन इनकी ग्रेटर नेपाल के ऊपर इंपॉर्टेंट न्यूज दे रहा है तो दैट्स मीन के ग्रेटर नेपाल अब जल्द से जल्द बनने वाला है। तो चलिए सबसे पहले हम इस रिपोर्ट को देखेंगे और फिर आपके साथ बात करते हैं। However, proponents of Greater Nepal argue that several territories, such as parts of Uttarakhand, Himachal Pradesh, Bihar, and West Bengal, should be integrated into Nepal. One of the primary concerns is the security implications that Greater Nepal may pose to India. With the addition of these territories, Nepal would share borders with China, Bhutan. ग्रेटर नेपाल टिभी हेरेर बस्नुभएका तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकवृन्दमा म विवश बुढाथोकी आजको यो बसाइमा पनि उपस्थित भएको छु। यतिबेला नेपाल लगायत विश्वभर ग्रेटर नेपालको चर्चा निकै चुलिएको छ। हुन त ग्रेटर नेपालको बहस योभन्दा धेरै पहिलेदेखि हुँदै आएको हो, तर अहिले ग्रेटर नेपालको बहस एक्कासी चुलिनुको कारण चाहिँ भारतले आफ्नो नयाँ संसद भवनमा अखण्ड भारतको नक्सा राखेको छ, जुन नक्सामा नेपाल, पाकिस्तान, बङ्गलादेश, म्यानमार लगायतका विभिन्न देशहरूका भूभागहरू समेटिएको छ। त्यसको विरुद्धमा बङ्गलादेश, पाकिस्तानले पनि त्यही अनुसारको रणनीति अगाडि बढाइरहेका छन् भने नेपालमा पनि त्यसको विरोध भइरहेको छ र त्यही विरोध स्वरूप काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले ग्रेटर नेपालको नक्सा आफ्नो कार्यकक्षमा राखेपछि त्यसको सिको गर्दै देशभरिका स्थानीय तहमा पनि ग्रेटर नेपालको नक्सा राख्ने कार्यक्रम चलिरहेको छ। त्यति मात्र नभएर अन्तर्राष्ट्रिय मिडियामा पनि ग्रेटर नेपालको बहस सुरु भएको छ। बेलायतका चर्चित मिडियाले पनि ग्रेटर नेपाल सम्भव भएको र ग्रेटर नेपालका भूभागहरू कुन कुन हुन् भन्ने बारेमा जानकारी गराएको छ। त्यसैले तपाईको माझमा बेलायती मिडियाले बोलेको यो भिडियो तपाईको माझमा प्रस्तुत गर्न लागिरहेको छु। यो भिडियो बारेमा थप जानकारी प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ भने यसको ओरिजिनल भिडियो लिंक हाम्रो डिस्क्रिप्सनमा राखिएको छ, त्यहाँ गएर पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। Welcome back to our channel, where we dive into thought-provoking topics and explore their various aspects. Today, we'll discuss a topic that has been a subject of concern for many, the concept of Greater Nepal and its potential threat to India. Let's delve into the geopolitical implications and analyze the situation from different angles. Before we begin, it's essential to clarify that the idea of Greater Nepal is a geopolitical concept that advocates for the reunification of territories historically associated with Nepal. While it is crucial to acknowledge Nepal's sovereignty and the aspirations of its people, it is equally important to understand the potential challenges such a vision may pose to India's security and stability. To comprehend the concerns surrounding Greater Nepal, we must first look at the historical context. The Sugauli Treaty of 1816 between Nepal and the British East India Company defined the borders between the two nations. These borders have remained largely unchanged since then. However, proponents of Greater Nepal argue that several territories, such as parts of Uttarakhand, Himachal Pradesh, Bihar, and West Bengal, should be integrated into Nepal. One of the primary concerns is the security implications that Greater Nepal may pose to India. With the addition of these territories, Nepal would share borders with China, Bhutan, and Bangladesh, creating a complex geopolitical scenario. India has always been mindful of its security interests and maintaining stable borders. Any alteration to these borders may lead to increased tensions and potential security challenges for India. India has a diverse cultural fabric and a long history of pluralism. Any territorial alteration that involves the redrawing of borders could impact India's territorial integrity. It may disrupt the lives and identities of people residing in the affected regions, potentially leading to socio-political unrest and even separatist movements. Another significant aspect to consider is the economic and infrastructural implications.
The regions that proponents of Greater Nepal seek to include are crucial for India's economic growth and development. They host major cities, vital transport networks, and strategic installations. Any disruption caused by border disputes or a shift in administration could hinder economic progress and create logistical challenges. The concept of Greater Nepal also has the potential to strain diplomatic relations between India and Nepal. Historically, India and Nepal have shared close ties, including cultural, economic, and people-to-people connections. Any attempts to alter borders or redraw boundaries may lead to strained relations and impact the mutual trust and cooperation that both nations have worked hard to build. While acknowledging the aspirations and historical context behind the concept of Greater Nepal, it is important to recognize the potential threats it may pose to India. The geopolitical implications, security concerns, impact on territorial integrity, economic repercussions, and strained diplomatic relations must all be carefully considered when evaluating this concept. Remember, healthy dialogue and understanding between nations are key to resolving conflicts and ensuring stability in the region. Let's foster peaceful coexistence and work towards finding mutually beneficial solutions. Thank you for joining us today, and we'll see you in our next video. दर्शकवृन्द, सत्य नै हुन्छ जति झुट बोले पनि। बेलायती चर्चित मिडियाको यो रिपोर्ट तपाईलाई कस्तो लाग्यो? कृपया लाइक, शेयर तथा कमेन्ट गरेर आफ्नो प्रतिक्रिया जनाउन नभुल्नुहोला। यस्तै नयाँ र ताजा जानकारीको लागि हाम्रो ग्रेटर नेपाल टिभीलाई सब्स्क्राइब पनि गर्न नभुल्नुहोला। अर्को श्रृङ्खलामा फेरि हाम्रो भेट हुनेछ नयाँ विषयवस्तुको साथमा। त्यतिन्जेलसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। जय देश, जय ग्रेटर नेपाल। और आपको पता चल चुका होगा कि ब्रिटेन की मीडिया क्या बात करी थी कि ग्रेटर नेपाल की जमीनें कहां तक मौजूद है। हम इससे पहले भी कई बार आपके साथ शेयर कर चुके हैं ग्रेटर नेपाल के बारे में अमेजिंग बातें, और आपको बताते हैं कि ग्रेटर नेपाल कब तक कैसे टूटा और क्या कहानी है इसकी। रिसेंटली टाइम पे काफी बड़ी डेवलपमेंट्स हुई है ग्रेटर नेपाल को रिलेटेड करके और ग्रेटर नेपाल के हवाले से। रिसेंटली मैंने आपको ये बात की बताई थी कि पाकिस्तान की आर्मी इस टाइम पे ग्रेटर नेपाल को सपोर्ट करने की बात कर रही है। उसमें बहुत सारे लोगों ने बात की है पाकिस्तान कैसे कर सकता है, पाकिस्तान के तो पास पैसे ही नहीं है और पाकिस्तान के पास तो रहने के लिए अपने पास खाने पीने की चीजें नहीं है, तो पाकिस्तान कैसे ग्रेटर नेपाल या इंडिया के खिलाफ बात कर सकता है। देखिए, उस वीडियो के अंदर मैंने ये बात भी की थी कि पाकिस्तान के आवाम के पास पैसा नहीं है बट आर्मी के पास बहुत पैसा है, और वो चीज मैंने आपके साथ शेयर की और कुछ दिन बाद ही वो मामला आपको पता चल चुका है। पाकिस्तान और ईरान के बीच पे काफी तनाव और कशीदगी बढ़ी है, जिस पाकिस्तान ने वापसी में जवाबी कार्रवाई करते हुए ईरान के ऊपर गोलाबारी और मिसाइल दागे है। तो अब आपको पता चल चुका है कि भाई आर्मी ताकतवर है और आर्मी के पास पैसा है, जिसकी वजह से वो मिसाइल दाग रही है। ऐसे तो नहीं है कि किसी ऐसे मुल्क के ऊपर ईरान ने दागे मिसाइल जिसके पास एटम बम नहीं है। पाकिस्तान के पास एटम बम है और बहुत सारी चीजें जिसके ऊपर पाकिस्तान ने उनके ऊपर मिसाइल दागे हैं। अब अगर ग्रेटर नेपाल की बात है तो भाई ब्रिटिश की मीडिया हो, चाहे वो यूएसए का मीडिया हो या चाहे वो पाकिस्तान का मीडिया हो, वो आजकल इन कशीदगी की वजह से बात कर रही है मुख्तलिफ बॉर्डर डिस्प्यूट के ऊपर और मामलात को थोड़ा गर्म करने की तरफ भी बात चल रही है कि भाई हो क्या रहा है असल में। देखिए, ग्रेटर नेपाल के रिलेटेड हमें तो यही खबर निकल के सामने आती है ना कि ग्रेटर नेपाल पाकिस्तान इसको सपोर्ट कर रहा है, या अगर इसको चाइना सपोर्ट करे या तो ब्रिटेन सपोर्ट करे। इंडिया किसी भी किस्म पे अपनी जमीनें नहीं देगा, और ये इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इंडिया ये चाहता है कि भाई मैं अपनी जमीन ना दूं और बाकी जमीनों के ऊपर भी कब्जा कर पाऊं, जिसकी वजह से ब्रिटेन या ब्रिटिश की मीडिया इस टाइम पे ग्रेटर नेपाल की जमीनों के बारे में बात कर रही थी कि कौन कौन सी जमीनें हैं और ये कहाँ पे है। जिसमें सबसे ज्यादा जमीन अगर हम देखने को मिलती है वो बिहार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश वाली जगह पे मिलती है। यहीं पे सबसे ज्यादा जमीन है और यहीं पे इंडिया की सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड आबादी है और यहीं पे उनकी सबसे ज्यादा इकोनॉमी वहां से ही आती है, मतलब पैसे जीडीपी वहीं से रिकॉर्ड होते हैं, जिसके बारे में ग्रेटर नेपाल के बारे में भी लोग बात करें और लोग इसके बारे में भी बात करें। तो बेसिकली बात यही चल रही है कि भाई ग्रेटर नेपाल अब बनने जा रहा है, बट अगर कुछ मामलात को नेपाल इसके ऊपर बात करे तो ही ये पॉसिबल हो सकता है। ब्रिटेन की मीडिया का न्यूज आपने देखा, नेपाल की मीडिया का भी न्यूज आप लोगों ने देख लिया होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक लाजमी करें।